So just see and give the answer of biology. So this is a sample paper. Here in this sample paper, you have 1 mark question, 2 mark question, 3 mark question, and 5 marks question. So this is just an example that how the questions are coming in class 9th and 10th. And I'm having answers also. So you just see and give the answer. Cheek cell do not have what? Plastid. Oh, okay, Chaitanya has only given the answer. ठीक है, नमन, सुर, मोक्ष. Arham, what is the answer number? Which of the following secondary sexual character is not present in male? Very good. But the answer number is not written ना. लिखो इसमें कौन सा आंसर है ये. सेकंड का चैतन्य एवरीवन को जा रहा है मैसेज. Okay, Arham, thank you. So now you have the correct answer of this is development of breast. This is a physics question. This is again a physics question. Fourth one, ठीक है. Fifth, I don't know. अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे भी नहीं पता है, मैं आंसर बता ही नहीं सकती हूँ. Now the question number 8. The new number of nuclei present in zygote is. The number of nuclei present in zygote. 8th answer. Zygote पूछ रहा है ना. Chaitanya giving answer to everyone. तुम लोग ना सब अब पूरा अंदर दिमाग में तुम लोगों के कुछ और ही भर गया है. कोई 4 लिख रहा है आंसर, कोई 1 लिख रहा है, कोई 2 लिख रहा है. क्या बोलूं मैं कि कौन सा आंसर करेक्ट है. आंसर लास्ट में दिखाऊंगी, तब देखना कि इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है. 9th question. Green color of leaves is due to the presence of pigments. Chlorophyll, mitochondria, ribosomes, chloroplast. Pigments. Yes, chlorophyll. 10th question, I don't know. So let's move on to the 1 mark question answer. Name the hormone which control the metamorphosis in frog. Okay, Chaitanya. ठीक है. This second question is of biology. While sieving grain, small pieces fall down. Which force? Nahi, it is of physics. Ha, Pahel. Yes, correct. Chaitanya is also correct. But I will not tell the answers to anyone. Pahel, the name you have written, that is the gland. उस ग्लैंड के अंदर से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम कुछ और है जो चैतन्य ने लिखा है. ठीक है, तो you have written the name of the gland. Students, please help. The question number 3rd is of biology. Fishes move easily in water. How? Okay. 4th is physics question. And
Fifth question. Plastic straw A and B are rubbed with dry cotton. What will happen? Okay, nahi hai. Sixth question. Why does banana appear yellow? This is chemistry question, might be. Banana appears yellow. So here you have 2 marks question. A 2 marks question, a bucket made up of plastic. This is of chemistry. Chemistry. This is again of chemistry. Physics. What are the 2 consequences of deforestation? ये bio में भी आता है, इसलिए you can give the answer. What are the 2 consequences of Chaitanya? मैम आई हैव टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल है जो हम पढ़े नहीं, और आप चाहो तो मैं आंसर दे सकता हूँ. आई नो इट. अरे तो ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो कॉमन क्वेश्चन है. ये तो कॉमन क्वेश्चन है, चलेगा ये अगर नहीं भी पढ़ा है तो. मैम आंसर दूं? हाँ, लेकिन तुम रुको, पहले किसी और को देने दो, जरा देखें कोई और आंसर के लिए इंटरेस्टेड है. एनीवन? 2 कॉन्सिक्वेंसेस. कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि रिजल्ट. ठीक है, कैसे होता है ये नहीं बताना है आपको, आपको रिजल्ट बताना है. नाउ कैन आई? यस, नाउ. वेट. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल हैपन? वेट चैतन्य. साक्षी इज रेजिंग हैंड, उसको मौका दें पहले. साक्षी. Ma'am, I'm not raising hand to give answer. I'm telling that your email is invalid. It's telling that there is no email It like can't. this. It is possible. ये possible ही नहीं है. It is not possible. Ma'am, you can you share your phone number? I will send you this. नहीं. I will not share my phone number. Send in mail. Phone number में अगर Ma'am, submit करोगे तो have you imagined how many things will be come in my mobile? Have you imagined that? तुमने अपना workload तो कम कर दिया, और even that mail is given to everyone and they are sending their mails. तो why you are not coming to me? आप ट्राई करिए, कैसे भी करिए. यू आर नॉट एबल टू सेंड द मैसेजेस, इसलिए वैसे बता रहा है. Okay, ma'am. ठीक है, थैंक यू. गुंजन. गुंजन. मैम मैं गिव आंसर. वेट, गुंजन कुछ बोलना चाह रही है. लेट्स सी. गुंजन. Ma'am, I was telling that, ma'am, we have to write notes also. हाँ चैतन्य बोलिए. हाँ ma'am, any 2 consequences of deforestation. Ma'am, for example, if there is a mountain and there are many lush green bushes and tall trees, ma'am, so if they are cut, the most probable 2 consequences. और for example अगर मान लो लैंड में अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो सॉइल इरोजन होगा, और पहाड़ में हो रहा है तो रेन वॉश होगा. एंड सेकंड जो बोथ में कॉमन है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, because the heat. लक्ष्य ऑलरेडी रिटर्न दिस. sunlight will trap carbon dioxide. हाँ, लक्ष्य ने ये बता दिया है, और मधुर ने भी आंसर मुझे दिया हुआ है कि फ्लडिंग एंड डिक्रीज इन ऑफ ऑक्सीजन. ये मधुर ने बताया है. एंड द लक्ष्य गिवन ग्लोबल वार्मिंग एंड सॉइल इरोजन in 2 words. So thank you Chaitanya, thank you Madhur and Lakshya. Now move on to the next question. आपको ओवम का डायग्राम आता है बनाते? सबने बनाया हुआ है अपनी कॉपी में, नोट्स में. फॉर्म का बनाया हुआ है. 9th question. Name the hormone which would be released during the following situation. A frightened person, growth of a child to adult, development of caterpillar to moth, and development of tadpole in frog. So I know कि बहुत से hormones आपको नहीं पता है. So you will get the answer of this. I'm showing you the answer कि कौन सा हार्मोन इसमें से होता है. This is the 9th answer. See, adrenaline is secreted from adrenal gland during the stress condition. Adrenal तुमको पता है, तुम्हारी बुक में पिक्चर भी है adrenal gland का. तो stress,
थकान, डर, उस समय एड्रिनल ग्लैंड इज रिलीजिंग दिस हार्मोन। दूसरा है कि ग्रोथ हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड टू रेगुलेट द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। तो ग्रोथ हार्मोन ये पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड्स भी बोलते हैं। फिर कैटरपिलर टू मॉथ में कन्वर्ट होता है इंसेक्ट हार्मोन्स, उनको कोई डिफरेंट नेम नहीं दिया होता, तो एक कॉमन नाम दे दिया इंसेक्ट। अगर हम नाम डालने जाएंगे तो इस दुनिया में हजारों नाम होंगे। एंड द टेडपोल, डेवलपमेंट ऑफ टेडपोल टू फ्रॉग, जो फर्स्ट 1 मार्क क्वेश्चन आया था, तो 2 students have given the answer, one is Chetan and one more was there, that is I think Bhumika or कोई और है, sorry. So the answer she was given, that is the thyroid hormone, that is the thyroid gland. Thyroid gland से जो हार्मोन निकलता है that is the thyroxine. तो 2 लोगों का आंसर एकदम करेक्ट था। Now move on to the next question. ये आपके सामने 2 marks question थे। Now the 3 marks question. 3 marks question is, एक तो आपके सामने ये डायग्राम दिया हुआ है। Now you have to say the labelings. A क्या है, B क्या है, E क्या है, C क्या है, D क्या है. So after observing this diagram, you can recognize कि it is plant cell or animal cell. बता सकते हो, ठीक। और पुलकित, thank you Saksham, and tell this to everyone that my mail ID is valid. हाँ पुलकित, पुलकित का नहीं आ रहा है आवाज। ओके चैतन्य। यस मैम, मैं ऑर्गन का नाम ऐसे बोल दूं क्या? आपको मैं पूछ रही थी, आप कुछ बोले ही नहीं। हाँ मैम, कैन आई एक टेल मिनट, नाउ? नहीं चैतन्य, पुलकित को बोलने दो। मैम ये प्लांट सेल है। हाँ, उसके ऊपर वाला मैम ए है सेल वॉल। ओके। बी है सेल मेम्ब्रेन। और मैम मैम डी है ई है वैक्यूल। डी को तुमने बोला वैक्यूल? ई मैम, ई मैम, ई वैक्यूल मेम्ब्रेन। अच्छा, यस मैम। और बाकी? और डी मैम, डी नहीं पता मैम, डी नहीं पता। कोई बात नहीं। मैम सी, बुक खोलकर बता रहे हो क्या? नो मैम, सी भी नहीं पता मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना सी पता और है, डी नहीं। जितना पता है अच्छा है। यस राशि, राशि, आवाज ही नहीं आ रही है राशि। राशि, अरहम, मैम जब मैं मेल में फाइल अटैच कर रहा हूँ ना, तब मेल आईडी इनवैलिड दिखा रही है। एक मैंने टेस्ट मेल भेजा है, उसमें आईडी वैलिड है। अच्छा, तो फाइल शायद बड़ी है, उसको चैप्टर के हिसाब से भेजो। एक साथ अगर ज्यादा बट बड़ी, अगर फाइल बड़ी होती तो वो दिखाता है ना कि फाइल इज लॉन्गर देन दी मतलब इनफ, तो फिर ऐसा दिखाता हो। मुझे इतना नॉलेज तो नहीं है इसका कंप्यूटर का, तो मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। चैतन्य। Yes, thank you, ma'am. Ma'am, first of all, this is a plant cell, as you can see, ma'am. बाहर की तरफ पूरा cell wall है, so the part A, ma'am, it is known as the cell wall.
Part B, ma'am, it is known as the cell membrane. Then part E is the vacuole, part C is the nucleus, and part D is the cytoplasm. ठीक है, वेरी गुड, यू हैव एक्सप्लेन्ड. नाउ सी द आंसर, जो बहुत लोगों को अभी इसमें डाउट था. ये है आपका प्लांट सेल, और बहुत क्लियर व्यू था, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं था. सबसे पहले तो तुमको पता ही है प्लांट सेल सबसे ज्यादा एरिया क्या लेता है, वैक्यूल. तो क्लियरली पता था वो न्यूक्लियस को कम जगह देता है. अब न्यूक्लियस और वैक्यूल के बीच में क्या रह रहा है, साइटोप्लाज्म. बाकी तो ये पता ही है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन. हाँ पुलकित, मैम यस मैम, मेरे को न्यूक्लियस समझ नहीं आया मैम. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. चलो देखो, जितना समझ में आया वेल एंड गुड. यस मैम. जब तुम ना एक चीज याद रखो, जब भी तुम्हारे सामने सेल का पिक्चर आए तो सबसे पहले ध्यान रखो कि वो सेल किसका है. और अगर वो बता रहा है कि दैट सेल इज ऑफ प्लांट सेल, मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय द वैक्यूल्स. तो वैक्यूल सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है और टेढ़ा मेढ़ा सा होता है. वो कुछ ही जगह देता है न्यूक्लियस को. तभी मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि सारे ट्रीज, तुम सेम सीड के 2 ट्री लगाओगे लेकिन दोनों का शेप अलग होता है. क्योंकि सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो ज्यादा जगह लेता है और टेढ़ा कर देता है सेल को, इसलिए सेल का कोई शेप नहीं होता वैक्यूल्स की वजह से. तो इस बात को याद रखना. अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. राइट 4 वेज थ्रू विच एड्स इज ट्रांसमिटेड. बताओ एड्स कैसे ट्रांसमिट हो सकता है. व्हाट आर द 4 थिंग्स. चैतन्य, आई नो यू नो द आंसर, बट मुझे कोई और भी चाहिए. तुमको सबसे लास्ट में मौका मिलेगा. यस नमन. Ma'am, AIDS can be transmitted from the injection, means using same injections. हाँ. From mother to the baby from she's milk. हाँ. And sexual contact. Very good. Ma'am, 3 only I am knowing. क्या बोला, फिर से बोलना तो बेटू. Ma'am, first is ma'am, from mother to the baby from नहीं, last point. Last sexual contact. After that, चलो कोई बात नहीं. थैंक यू चैतन्य टू अंडरस्टैंड. चैतन्य ने आंसर लिखा हुआ है. गुंजन, यस Ma'am, can I answer? बोलो. Yes, ma'am. Ma'am, first point is sharing infection, blood transfusion, and splashing blood in your eyes, and accidental needle. ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ये आ जाता है नीडल वाला. थैंक यू चैतन्य. ब्लड ट्रांसफ्यूजन, देन सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, इंजेक्शंस एंड मदर टू चाइल्ड. वेरी गुड. ये आपके आ गए 4 पॉइंट्स ऑन एड्स. चलो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये तो तुम्हारा फिजिक्स का क्वेश्चन है, शायद तुमको पता हो, बट अगर कोई बताना चाहता है to tell the labelings of this diagram, they can tell. Write in chat. Write in chat. Yes, Rashi. राशि, आवाज नहीं आ रही है बेटा. मैं बार बार आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है. पुलकित,
यस मैम, मैं बताऊं? बोलो। यस मैम, जो मैम फर्स्ट ये आई है वो है जोनियल फाइबर्स, हम्म और जो सेकंड है वो है इरिस, हम्म और थर्ड है वो है लाइट। लाइट नहीं बेटा, यस मैम। नहीं नहीं नहीं, इसमें ऑप्टिक नर्व्स भी आता है, मैं बताती हूँ आपको। मैम एक मिनट एक मिनट। यस मैम। यार मेरे को कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। आप ये सही बोले थे आइरिस, ठीक है। ये सीलियरी मसल्स होते हैं। देखो ये याद रखो कि आइरिस और आई लेंस को कोई अगर पकड़ के रखता है तो वो होता है सीलियरी मसल्स। इसलिए जब कभी हम धूप से छांव में आते हैं और छांव से धूप में जाते हैं तो हमारा जो आइरिस जो होता है वो इस मसल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। तो सडनली जब आप रात में सो रहे होते हो और अगर आपके कमरे की लाइट आपकी मम्मी जला देती है तो आपके मसल्स क्या होते हैं, अंधेरे में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो और सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। और जब आपको लाइट चालू होती है तो सडनली आपकी आंखों में चुभन होती है क्योंकि सारे मसल्स तो सिकुड़ चुके हैं, अब वो खुल रहे हैं लाइट की वजह से। जब उन पे लाइट पड़ती है तो ये मसल्स खुलते हैं। तो ध्यान रखना आज के बाद कि आइरिस, आई लेंस और सीलियरी मसल्स, इनके ऊपर होती है कॉर्निया की लेयर। और ये जो लास्ट होता है, तुम अभी आगे फिजिक्स में पढ़ोगे, ब्लाइंड स्पॉट। ये ब्लाइंड स्पॉट ऑप्टिक नर्व से जुड़ी होती है। तो कभी कभी क्या होता है, इसका लिंक टूट जाता है जिसकी वजह से हमें आंखों से दिखता नहीं है, हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो बिकॉज ऑफ दैट ऑप्टिक नर्व, अंधापना जिसको बोलते हैं, अंधे हो जाना। अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Yes, the 5 marks question of bio is explain the use of fungi, bacteria and algae. तो ये चैप्टर तो मैंने तुमको नहीं पढ़ाया था, बट तुमको पता होगा कि हमको बैक्टीरिया कैसे यूज होता है, फंगी कैसे यूज होता है और एल्गी कैसे यूज होता है। तो एक्सप्लेन द यूज ऑफ बैक्टीरिया, फंगी एंड एल्गी। क्योंकि मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ाया है तो शायद तुमको पता है कि नहीं, किसी को अगर कुछ आता है। एनीवन? डाउट? पुलकित को भी डाउट है, ठीक है, वेट। हाँ पुलकित। पुलकित, चैतन्य? No doubt, can I just explain this answer? It's very easy, no, ma'am. अच्छा ठीक है, बोलो। Yes. Ma'am, see bacteria. Now, ma'am, bacteria is a very useful source for making a vaccine, tablets, injections by which we can get rid of diseases. Yes. So, it means they are known as, they are used to make antibiotics. हाँ And ma'am, and also one use of bacteria is like, for example, there is a bacteria in curd known as lactobacillus. So, ma'am, it helps in, like, for example, formation of milk into curd, and because of that, like, we can make, ma'am, like chole bhature, idli, and these all, and fermentation can, ma'am, easily be done because of that. And, ma'am, in yeast, such as, ma'am, there is organism known as ma'am, sorry, in fungi, there is an organism known as yeast. Ma'am, it also helps, like, say, almost as curd. And ma'am, it also helps in fermentation. Because of that, we make batter of idli, and then we can make like many stuff such as like pizza and etc. bread. These all. हाँ हाँ And ma'am, algae.
Yes, ma'am. Algae uses, ma'am, for example, ma'am, algae का use I'm not remembering. Let me remember now, ma'am. अच्छा, हाँ। तुमने कभी यूट्रॉफिकेशन पढ़ा है? यूट्रॉफिकेशन, क्या यूट्रॉफिकेशन, मैम? यूट्रॉफिकेशन, नहीं. EUTROPHICAT मैम, EU, ERO, EHI, TROPHICATION. eutrophication. Oh, understood. हाँ Little bit I'm understanding. of this हाँ, term. तो यूट्रॉफिकेशन जो होता है उसमें एल्गी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जिस भी एरिया में यूट्रॉफिकेशन मतलब कि उधर पानी रुक जाता है, रुकने से क्या होता है, दलदल जैसे जम जाता है। तो जो एल्गी प्रेजेंट होता है वो एल्गी वहां पर इकट्ठा किया जाता है, फिर उस एल्गी को उस गंदे पानी की हेल्प से छान के निकाला जाता है। तो दैट इज द मेन यूज ऑफ एल्गी। बहुत जगह एल्गी के साथ प्रोसेस्ड किया जाता है और एल्गी को यूज करते हैं फॉर अ फूड फॉर द एक्वेटिक Excuse me, एनिमल्स। ma'am. हाँ मैम, मेरे को एक फैक्ट पता चला था एक वीडियो देख के कि मैम ये जो फंगी है ना, उसका एक एग्जांपल ब्रेड मोल्ड भी है ना, हाँ है ना? हाँ और मैम एक मिनट ना, बैक्टीरिया का एक और एक यूज बता दे रहा हूँ। मैम, जो डीकम्पोजिशन का बहुत बड़ा हाथ जो होता है ना, वो बैक्टीरिया का होता है। हाँ, और डिकम्पोजिशन। मैम फंगी का, मैम जो ब्रेड मोल्ड एक फंगी होती है ना, हाँ मैम मुझे एक फैक्ट पता चला कि बहुत सारे देश, मतलब ब्रेड मोल्ड बहुत प्रकार के, बहुत वैरायटीज के होते हैं ना, तो इनमें कुछ खास वैरायटी के ब्रेड मोल्ड को खाया जाता है लिटरली। हम्म। और मैम और कुछ अब तो तुम मुझे इतने बताओ, अब तुम मुझे बताओ, मशरूम, हम मशरूम खाते हैं, ठीक है, बट कुछ मशरूम्स ऐसे होते हैं जो लोग कहते हैं कि फ्रॉग यूरिन कर देता है प्लांट के नीचे, फ्रॉग यूरिन कर देता है प्लांट्स ट्रीज के नीचे। वो तो जो मशरूम होता है, ऐसे लोगों का मिसकंसेप्शन है कि जो मशरूम होता है वो फ्रॉग के यूरिन से बनता है, उसको हम नहीं खाते, और उसको यूज करने से हमारे हाथों में और गले में ईचिंग शुरू हो जाती है। अगर खा लिया तो गले में, और उखाड़ लिया तो ईचिंग हाथों में शुरू हो जाती है। बट वो मशरूम और जो मशरूम हम खाते हैं दोनों डिफरेंट है, और लुक वाइज दोनों लगभग सेम है, दोनों छतरी बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ उगा है। कुछ चीजों को हम खुद उगाते हैं अपने पर्पस के लिए, और कुछ चीज बाय द गॉड ग्रेस वो अपने आप उग जाते हैं। तो जो अपने आप उगते हैं उनको लोग अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, तो ठीक है, अगर उसका कोई ड्रॉबैक निकला तो उसको खराब बोल देते हैं। सो स्टूडेंट्स, किसी को कुछ पूछना है इतने में? मैम, क्वेश्चन 22 तो कराओ, वो भी तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल से रिलेटेड है, बायो का। कहाँ पर? 22 बस ये ऊपर आई गया। हाँ, ये आ गया। हाँ, इसको मैंने इसलिए नहीं कराया कि वो कंजर्वेशन वाला चैप्टर है, नहीं पता कोई आंसर देगा कि नहीं। मैं बता दूं क्या? एक मिनट। तुम ही बता रहे हो, नहीं तुम ही बताते हो, मुझे और लोगों से आंसर चाहिए। पुलकित हैंड रेस कर रहा है, बट पुलकित आंसर दे नहीं पा रहा है, आवाज ही नहीं आ रही उसकी। पुलकित मैम बाय मिस्टेक हो गया था इस बार। अच्छा, तो अभी देना है तुमने आंसर? ओके ठीक है चैतन्य, लास्ट क्वेश्चन बता दो। पहले इट इज सेड, हाँ बोलो। It is said that CO2 means carbon dioxide contributes to global warming. Explain. See, ma'am, in our world, ma'am, long time ago, there was a limited quantity of carbon dioxide. I'm not telling that carbon dioxide, अगर बहुत हो जाए तो अच्छी है, ma'am. It is the worst thing ever. But carbon dioxide होना, ma'am, बहुत मतलब नेसेसरी था, और अभी भी है। बट अभी ना, पहले जमाने में ऑक्सीजन ना ज्यादा था थोड़ा, मतलब लाइक 20%, अभी घटते ही जा रहा है ऑक्सीजन का लेवल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। तो मैम ये जो डिफॉरेस्टेशन है ना, एक्चुअली क्या करता है? सी, what do trees do? Ma'am, they take carbon dioxide inside and therefore excrete oxygen, and which is very beneficial for even human beings. And ma'am, the environment, because of oxygen, the environment becomes cool, and because of this carbon dioxide, it becomes warm.
Warm इसलिए because carbon dioxide traps the heat of the sun and therefore it makes the atmosphere more like warm, and because of that what happened, ma'am, this ozone layer now, ma'am, it is depleting because of that only, and this is known as global warming. Yes. So And I increase am showing the answer of that question only कि ये आपके सामने दिया हुआ है. तो चैतन्य, please can you read this 22 answer? Yes, plants utilize carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing the amount of carbon dioxide in the air. Deforestation leads to an increase in the amount of carbon dioxide in the air because number of trees which consume carbon dioxide is reduced. Human activities thus contribute to the accumulation of carbon dioxide in the atmosphere. Carbon dioxide traps heat and it doesn't allow it to escape into the space. As a result, the average temperature of the atmosphere is gradually increasing. This is called global warming. Thus, increased carbon dioxide contributes to global warming. Please read the 23rd question. Here you Yes. have uses of bacteria. Bacteria use already you told. One is that milk into curd. ठीक है. फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल तुमने पढ़ा था, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है. ये तुमने ऑलरेडी बता दिया था. एंटीबायोटिक्स, and it helps in the functions of the body. हमारी body है different body. Now please read fungi and algae. Uses of fungi. Yeasts are used to prepare alcohol and vinegar by fermentation. Second, mushrooms are eaten as food. Third, penicillin is an antibiotic formed by fungus called penicillium. Yes. Uses of algae. Algae are used to make jellies. Second, chlorella is used to obtain proteins. Third, silica from diatoms are used in toothpaste. So this much you have for today. Now less than 1 minute is left. Thank you, ma'am. Bye. Have a Bye, nice day. bye, bye, beta. Bye. Uh,